back other than allopathy have been telling this thing since long. For all the therapies, other therapy other than the allopathy, they are always saying that there is, for homeopathy they are saying the same thing, for Unani they are saying the same thing, they are not recognizing any other therapy. So this is their personal problem and they are, means, सब जगह पे ऐसे ही बात करते रहते हैं. But we know better, no? We know, you have experience yourself, so nobody can nobody can deny that thing, that you don't have any experience. लोग बोलते रहेंगे, you just continue with this thing and people will come into that situation where it will really help them. Other than any drug, this will only help. अभी रिसेंटली एक IBS का पेशेंट था and he was told that this is something connected with your emotional disturbances, that's why you are getting this thing. But that is not enough. That person needs some solution to get rid of that problem, no? तो इससे क्या, तो उसने ट्राई बहुत किया डॉक्टर ने, लेकिन कुछ हुआ नहीं. अब ये डिफाइन कर दिया और उसके बाद जब उनसे ट्राई करने के बाद नहीं होता है, तो व्हाट इज दैट स्टेटमेंट, यू नो, ये तो ऐसे रहेगा, यू विल हैव टू कंट्रोल योर इमोशन. बट दे डोंट हैव रेमेडी और एनी सॉल्यूशन दैट हाउ टू कंट्रोल द इमोशन. ये भी है. जब उससे बात करके विद इन 7 days ही वाज आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम. So in last 7 days after taking the bed flower, he was out of that thing. So it is absolutely most rapid therapy in the world at this moment. Most rapid one. I have experienced that it is the most rapid one. Other things also help. We don't deny other things, but this is the most rapid therapy available on the planet because it directly works on the mental plan. And also it helps us to clear a lot of things from the spiritual plan also. Digvijay Bhaiya must have told you that there are 3 kind of healing happens, then only the actual healing starts: physical, mental and spiritual. Because everything start at the spiritual plan, then get stabilize into the mental plan and then manifest at the physical plan. तो ये ध्यान रखना है, ध्यान नहीं रखना है, लेकिन ये मन में विश्वास रखना है कि इट वर्क्स ऑन ऑल दिस 3 प्लेन. तो इट वर्क्स, देयर इज नो डाउट. समबडी सेज एंड इट्स आल्सो ओके भाई. अब हमें सुनना ही है उनका, हमें पता है कि ही डज नॉट नो, तो ये है, अब क्या करे उसका. तो you continue and you are, whatever you are doing is wonderful. Lot of results are there, lot of results. Yes, I have never seen this remedy failing, never. Even if you give something which is not suitable to that person, it still leaves something which is helpful to that person. कभी भी ये फेल नहीं हुआ है आज तक. So continue. I wish you good luck and do further study and further research into this and help a lot of people around you. Lot of people. उनको लगता है कि हाँ मैं सच में इस सिचुएशन से जा रहे हूँ या जा रही हूँ. और फिर बहुत सारे लोग जो अननोन लोग हैं, तो फिर वो बहुत सरप्राइजिंगली फील करते हैं कि यार इनको तो सब पता है हमारे बारे में, हमारे इमोशंस के बारे में इनको सब पता है. और वो खुद ब खुद फिर खुलना शुरू होता है. अभी अब तक मैंने लगभग 32 से भी ज़्यादा, 32 लोगों से भी ज़्यादा लोगों को मैंने ट्रीट किया है, लोगों को दिया है दवाई. और मैक्सिमम लोगों का ऐसा है कि उनको कुछ ना कुछ डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट लग रहा है. कुछ लोगों को थोड़ा सा धीरे से लगता है, कुछ लोगों को फिर इमीडिएट इफेक्ट आता है. पर ऐसा कोई नहीं मिला कि यार मुझे कुछ ही इफेक्ट नहीं हुआ या मुझे कुछ नहीं लगा. ऐसा अभी तक तो कोई ऐसा है नहीं. तो इट्स रियली वर्किंग वेल. बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू फॉर दिस वेरी गुड नॉलेज. जी दिग्विजय जी, आप बताइए. मेरा अनुभव यही है कि मैं बहुत लंबे समय से मन और भावनाओं पे काम कर रहा हूँ. और तो मैं चाहता भी था कि कुछ ऐसा मिले कि लोगों की भावनाओं को, उनके मेंटल और इमोशनल फीलिंग्स को समझकर अगर उनको हील किया जा सके तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है. क्योंकि जो भी भावनाएं उठती हैं वो मन के स्तर पर उठती हैं, और जैसी हमारी भावनाएं होती हैं वैसा हमारा मन होता है, वैसा हमारा तन होता है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम करके और बहुत कुछ जानने को मिला. मैं कई बार ऐसे सोचता था कि अगर हमें पता चल जाए कि किसी को गुस्सा क्यों आता है, कोई भूलता क्यों है, कोई कंफ्यूज क्यों रहता है, तो अगर हम उसको प्रैक्टिस करने के लिए या बहुत सारी चीजें बताते थे, तो हमेशा ज्ञान या प्राणायाम या योग इस पे ही हम आधारित होते थे. तो मेरे दिमाग में हमेशा चलता था कि कुछ ऐसी पुड़िया होनी चाहिए यार, बोल के पिला दो कि लोगों को ठीक मिले. तो मुझे ये कार्यक्रम अटेंड करने के बाद सबसे अच्छा ये लगा कि वो पुड़िया हाथ में लगी है
अब बाकी तो मैं पुड़िया का इस्तेमाल करने के बाद ही बोलूंगा, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि ये डॉक्टर बैच ने जो वरदान दिया है सृष्टि को, ये वाकई एक वरदान है। और मैं वैसे भी एलोपैथ में बिल्कुल बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि उनके पास हर दवा से के साइड इफेक्ट के लिए दूसरी दवा, और उसके साइड इफेक्ट के लिए तीसरी दवा, और उसके साइड इफेक्ट को नहीं रोक पाने से चौथी बीमारी उनके पास होती है। तो ऐसी साइंस पे मेरा वैसे भी बिलीव नहीं है कि जो आपको एक बीमारी से निकाल के, वो मैं तो कहूंगा कि एलोपैथ में बीमारी मैनेजमेंट है। बस वो इधर की बीमारी उठा के उधर रख देते हैं, उधर की उठा के उधर रख देते हैं, उधर की उठा के उधर रख देते हैं, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो आज जो हम सभी लोग हैं, जो एक विचार के लोग हैं, हमने ऐसी थेरेपीज को, आयुर्वेद को, बेस्ट फ्लावर रेमेडीज को, होम्योपैथ को, जिनके साइड इफेक्ट कम से कम है, ऐसी चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। और मुझे लगता है कि सृष्टि की ये आवश्यकता है कि हम लोगों को, खासतौर से हम जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ये हैप्पीनेस लाने का एक बहुत सुंदर तरीका है, जिसके माध्यम से हमें लोगों को बताना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए। और बाकी दुनिया में कोई चीज पूर्ण नहीं है सिवाय गुरुदेव के। तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों को आपकी बात वैसे भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो आपसे सुनते हैं इसलिए पसंद नहीं आती, कई बार ऐसा भी होता है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने जीवन में बहुत इन चीजों में मैंने उलझना जब से बंद कर दिया है कि जिनको मेरी बात नहीं अच्छी लगती, तब से मेरा जीवन आसान हो गया। तो बाकी ठीक है, वो गुरुजी वो स्टारफिश वाली कहानी सुनाते हैं ना, कि जिसके जीवन में, एक के जीवन में परिवर्तन आया ना, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर हमने किसी एक व्यक्ति को डिप्रेशन से बचा लिया, उसका जीवन बर्बाद होने से बचा लिया, उसके घर में जो असमंजस बैठा हुआ है, जिसके कारण अशांति फैली हुई है, वो संभाल लिया, तो मतलब जितनी हमने फीस और जितना टाइम इसको दिया है, वो मतलब उसका अच्छा रिजल्ट है। एक परिवार भी अगर हमने बचा लिया और हमने अपने आप को बचा लिया, तो ये उससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा दिग्विजय जी का, कि जिन्होंने इस चीज को रखा। क्योंकि शायद अगर हमारे किसी गुरु भाई के अलावा शायद मैं उतना सहज नहीं होता किसी के साथ नई चीज सीखने के लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा दिग्विजय जी का और अनिल भाई का, जिन्होंने बताया कि 20 साल से वो कर रहे हैं। हम तो अनिल भाई को बहुत 2004-2005 से जानते हैं, कभी इन्होंने जिक्र नहीं किया, तो हमें इस बात का भी बड़ा मलाल रहेगा कि अनिल भाई ने कभी बताया नहीं कि वो बेस्ट फ्लावर रेमेडी जानते नहीं। तो हमने भी 10-15 साल पहले जान लिया होता, तो कई बार हम अपने मन की अलग अलग अवस्थाओं में आए, जिससे जीवन में कई बार परेशानियां उठानी पड़ी, तो शायद उससे बच जाते। तो मैं कहूंगा कि मेरे इधर 15 साल में जब से अनिल भाई को जानता हूँ, मेरे जीवन में जितने भी उथल-पुथल आए, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अनिल भाई है, और कोई नहीं है ना। क्योंकि एक मित्र होने के नाते उन्होंने अपनी बात हम लोगों से रखनी चाहिए थी। और दिग्विजय को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये किया। खासतौर से मधु जी, हमारी जो बनारस की टीचर है, उनके बेटे ने मुझे बताया, मैं उसका भी तहे दिल से शुक्रिया करूंगा। शारदा जी ने भी जिक्र किया। तो हम इस मुकाम तक पहुंचे, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और हमने इसको जितना जितना संभव हो, यथासंभव हो, फैलाना चाहिए। ज्ञान जो है ना, वो प्रकाश के जैसे है, उसको अगर बांधोगे तो तुम्हारे हाथ में केवल अंधेरा ही आएगा, और उसको खोल दोगे, दूर दूर तक पहुंचे दोगे, तो तुम भी चमकोगे और तुम्हारी पूरी सृष्टि चमकेगी। ऐसा ही मैंने गुरु जी से सीखा है। बस इसी के साथ में बहुत अच्छा। अनिल भैया, आगे कुछ बात करने से पहले हम सर्टिफिकेशन सेरेमनी करेंगे, कुछ लोगों को जल्दी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने बहुत अच्छे से हमको सिखाया सब बेस्ट फ्लावर के बारे में। और अनुपम जी को भी बहुत मतलब ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने बताया इस बारे में और हमने सब साथ में ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लगा इस कोर्स में बेस्ट फ्लावर सीख के, इतना अच्छा लगा। मतलब मैं खुद नेचुरोपैथ हूँ, तो मैं आई बिलीव इन नेचुरोपैथी। मैं यही मानती हूँ कि जिस तरीके से हम नेचुरली अपने कोई भी डिसीज है या कुछ भी प्रॉब्लम्स है, उसको हम ट्रीट करें। तो ये बेस्ट फ्लावर जो है, मुझे लग रहा है ये भी एक पार्ट ही है नेचुरोपैथी का। मैं तो, क्योंकि नेचुरोपैथी में भी यही सारी चीजें जो है नेचुरल वे में जो भी अवेलेबल है चीज, उसी से ट्रीटमेंट की जाती है। और बेस्ट फ्लावर मतलब फ्लावर्स, वो भी एक नेचर का ही एक पार्ट है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इसको भी मैं एक ट्रीटमेंट के पार्ट में इसको साथ में ले सकती हूँ। दूसरी चीज ये कि ईश्वर ने हमें शरीर को वो सेल्फ हीलिंग पावर दिया ही है कि हम अपने शरीर को अपने से ट्रीट कर सके, अपने डिसीज को ट्रीट कर सके। तो ये बेस्ट फ्लावर जो है वो मतलब लग रहा है कि इसमें और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जो भी
इमोशंस है वहीं से, जो मन है, जो भी इमोशंस है वहीं से रोग जो है जन्म लेता है, और वही बाद में कहीं ना कहीं शरीर पे आता है। तो अगर हमारा मन और अगर इमोशंस जो सही है, तो हम कोई भी डिसीज जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कोई भी क्रिटिकल डिसीज को भी हम वेज फ्लावर से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज के टाइम में जो डिप्रेशन है, जी सुसाइडल टेंडेंसी जो है, वो सारी चीजें जो बढ़ रही है, स्ट्रेस लेवल जो बढ़ रहा है, तो उसमें ये वेज फ्लावर रेमेडी जो है वो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। और थैंकफुल टू यू, बहुत अच्छा लगा कि हमको इतना अच्छा नॉलेज जो है मिला। और वो उतना ही हम जान सकते हैं जितना हम खुद को जानते हैं। ये फ्लावर का ट्रेट है। मतलब आप इम्पेटेंट पढ़े हो तो उसमें भी लिखा है यू कैन नो अदर पर्सन टू दैट लेवल, टू दैट प्रोपोर्शन वेयर यू नो योरसेल्फ। तो नोइंग वन सेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, दूसरे को हील करना है, उससे ज्यादा उसको हेल्प करना है, वो भाव से ही करना, सेवा का एक भाव रखना। क्योंकि हील करना वो इटसेल्फ फिर अलग लेवल पे चला जाता है, मन के स्तर पे। और तीसरा, खुद को जब हम हील करते हैं तो काफी कुछ चीजें घटनाएं घटती है सटल लेवल पे। तो एक प्रैक्टिशनर जो भी हीलिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है उनको फ्लावर के कुछ चीजें तो अप्लाई करते ही रहना चाहिए। जैसे वॉलनट हेल्प्स, बीच हेल्प्स the practitioner, so you don't get into the judgment of the previous results. That is very very important, that you don't fall in that trap of that this is how it happened with that person, so and he was healed, so this is the same application you are going to do here, same administration of the drug, this flower, वो कई बार गलत हो जाता है। तो पूरा ना भूलते जाना वो बहुत बड़ी मतलब चैलेंज होती है हमारे लिए। और उसमें इज आउट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम बीच सबने पढ़ा ही है, और वॉलनट दूसरे लोगों के थॉट भी अगर कोई हमें ज्यादा वो असर ना करे, दूसरों की एनर्जी, क्योंकि जैसे जैसे मेरा अनुभव है, जैसे जैसे आप बैच फ्लावर लेते जाओगे बहुत सेंसिटिव होते जाओगे टुवर्ड्स द एवरीथिंग अराउंड यू, है ना। सो बिकमिंग मच मोर नेचुरल एंड बीइंग विद द नेचर, नेचर इज द ओनली वे टू गो डीप इनटू दिस रेमेडी। बाकी तो दिग्विजय भैया है और आप सब लोग एक दूसरे के जो अनुभव शेयर करोगे उससे ही काफी कुछ आने लगेगा। बस ये बहुत बड़ी अद्भुत देन है कुदरत की जो हमें प्राप्त हुई हम सबको। और ये कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, ये याद रखिएगा कि ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है साधना का या सेवा का। उनके कारण ही शायद हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो गुरु इज द अल्टीमेट फ्लावर, and to experience him is, it should be the ultimate goal of our life. बस दिग्विजय, this is all other thing you have already taught, everything you have taught. अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं अनिल भैया से। मैं शुरुआत करता हूँ। अनिल भैया, आपने कई सारे एनिमल्स के ऊपर भी ये किया है, कई सारे लोगों के ऊपर भी किया है, तो आपने क्या देखा, कितना समय लगता है, क्या आपका इसके ऊपर फीडबैक रहा, और हम अगर किसी को दे रहे हैं स्पेशली अननोन व्यक्ति को तो हमने क्या याद रखना चाहिए? ये रेमेडी का बेसिक यही है कि जो लोग जितने प्योर होते हैं वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं इसको, और जो जितने लोग मतलब नॉट इन द डेरोगेटिव मीनिंग, पर जो शुड होते हैं उनको थोड़ा कम फर्क दिखता है, दे आर नॉट एबल टू नोटिस इट, है ना। तो plants and animals, they immediately respond to this remedy immediately, and the people who are light means very pure kind of people, those who are not so, अब कुछ भी बोलना भी ठीक नहीं है, लेकिन जो जो बोलते हैं श्रूडनेस होती है मन में, एक घर कर जाता है, बहुत ही लॉजिकल पॉइंट से जीते हैं और अपने विचारों में खोए रहते हैं, तो दवाई तो असर करती है, बट दे डोंट नोटिस, एंड दैट इज व्हाई दे कैन नॉट कंटिन्यू विद दिस रेमेडी, दैट आल्सो हैपेंस। सो पेशेंस ऑन आवर साइड, एंड फ्लावर मैंने बताया वैसे प्लांट्स एंड एनिमल को बहुत फास्ट हील करता है। बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे एक्सपीरियंस है उसके। जैसे कोई प्लांट उठा के दूसरी जगह पे आप डालते हो और वो मरना शुरू कर देता, मतलब वो छोड़ देता है, वो ग्रो नहीं करता, वहां चिपकता नहीं है, तो फिर उसको वॉलनट जैसे, ये इजी है, दिस इज द मोस्ट सिंपल रेमेडी। And the more simple you become, more simple you will be able to recognize and identify the cause of the disease of other people also.
है ना। एक बार हमने एक बिल्ली घर चौथे माल से गिर गई। बिल्ली नॉर्मली वो क्या है, फंसी पड़ी थी और उसके पीछे मारने के लिए सब दौड़े थे, तो वो ऐसे ही जंप लगा दिया चौथे माल से। तो वो नॉर्मली बिल्ली गिरती है तो उसको लगता नहीं कि वो उसी तरह से गिरती है कि उसको बैलेंस करके फिर वहां से निकल, लेकिन वो अनकॉन्शियस, उसको हेड इंजरी हुई और तुरंत ही मेरा भांजा उसको ऊपर ले आया और वी स्टार्टेड विद द रेस्क्यू ओनली। और रेस्क्यू तो वो तो बेहोश थी, तो उसके मुंह में हमने वो थोड़े ड्रॉप्स छींटे ऐसे और आंखों पे और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाला। वो पड़ी रही, बेहोश ही पड़ी रही, मतलब 1 आध घंटा पड़ी रही। उसके बाद धीरे धीरे हिलना, ऐसे ऐसे करके हिलना शुरू हुई। And then we continue giving the rescue, and by second hour she just got up and started moving in the room. और 3-4 घंटे के बाद वो फिर से चल के भाग गई। तो ये हेलो जी भैया, हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है ना? तो ये बहुत ही अच्छा अद्भुत काम करता है। रेस्क्यू रेमेडी इज सिंपली अमेजिंग। द मोर यू विल नो यू विल बी अमेज्ड, है ना। काफी कुछ चीजें पेटेंटेड इन द सेंस कि जैसे जो लोग जो वुमेन प्रेग्नेंट है उसको आखिरी 3 महीने देना ही चाहिए। काफी सिजेरियन ऑपरेशन हमने मतलब बचाए हैं काफी। मतलब डॉक्टर ने बोल दिया 6ठे महीने में कि भाई ये तो सिजेरियन कंपलसरी है। अब कौन से एंगल से उन्होंने बोला है जो भी है, वी डोंट गो इनटू दैट थिंग, बट बाय टेकिंग रेस्क्यू दे हैड अ नेचुरल डिलीवरी एंड विद अ हेल्दी बॉय, एंड आफ्टर डिलीवरी दे बोथ वर, द चाइल्ड एंड द मदर बोथ वर वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स। तो ये 3 महीने तो कम से कम देते हैं। बीच में भी अगर आपको लगता है तो यू कैन ट्राई दिस रेस्क्यू। उसके अलावा उनकी टाइप रेमेडी अगर आप अप्लाई करते हो दैट विल आल्सो हेल्प। बहुत सारे एक्सपीरियंस है, पर मैं चाहूंगा कि ये एक्सपीरियंस में पढ़ने, मतलब आप ये मान लो एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं, ये आते जाना, देखते जाना, आपको जितना जितना खुद का अनुभव होता जाएगा उतना ज्यादा गहरा इसमें विश्वास बैठता जाएगा। विश्वास है ही आप सबको, लेकिन आप वो क्या होता है फिर हम ही रिफ्लेक्ट करने लगते हैं दूसरों को, ऑटोमेटिक विश्वास आ जाता है ना। सर यस दिग्विजय, वे क्वेश्चन, कोई 1 या 2 व्यक्ति प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ, ओनली 2 people यस because we have to start सर ceremony. Yeah. मैं प्रमोद झा। भैया जैसे प्लांट्स पे कैसे अप्लाई करना है, जैसे जैसे कई बार प्लांट। And thank you for the formal certification ceremony. I'm so glad I'm a certified, batch therapist now, and I'm looking forward to level 2, and I want to go, in depth of this beautiful therapy. And I, like Anil ji said, as a seva, I want to pursue this also. So I have myself benefited a lot in this 1 month, and I want to, I want more people to benefit. It's truly a very powerful. Thank you, Digvijay. But I'm very sure that I'll be benefited with it and able to see the changes in me while writing exam. Also, I was able to go through all the experiences and the state of mind, and it really took me a long time to complete the exam as I was putting myself. It was really good. The experience of writing the exam was really good, and I enjoyed it. Looking forward for level 2. It increases your awareness level, in short, I will tell, and you started looking from different lenses, and then you have the more compassionate about people rather than going in a logically seeing them. You have more compassionate, and then you can next step whatever the tools now we have to rectify or to smoothen their journey. So that's it from my end. Thank you, Gaurav. Who is next? Monica ji. You took the whole workshop. It was amazing journey because I was going through a lot of turmoil, and mentally, physically, in all levels. And by Guru's grace, I didn't receive that medicine till now. But my friend just 2 days back, she came with this kit. So the whole kit the stock kit is at my place, and she has started giving me this remedies, and I felt so good. Even my husband, he took it. My son, he took it. It's an amazing journey. It's a gift actually, because it was just on the words. And the best thing was when you feel that the person, whatever they are doing, it is not just by the action, due to the emotion they are doing. So the compassion comes in you. You look the life with a different angle. I'm really grateful for this beautiful knowledge, and I will definitely come for the level 2. I'm there.
अरे जय गुरुदेव भैया। मैं तो लाइक दिग्विजय भैया से अभी सबसे लाइक रीसेंट वाला जो बैच है उसके पहले वाला बैच में मैंने किया था, और मैंने भी लाइक फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस कुछ था नहीं क्या है कैसे होता है, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए रजिस्टर किया था, और फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट करने के बाद जो मेरा फाइनली जो लाइक अंदर से होता है ना कि हाँ फील गुड वाली फीलिंग आती है, वो फर्स्ट के बाद तो आधी के लाइक 70% आ चुकी थी, सेकंड के बाद तो लाइक 200% हो गई कि अरे भाई कुछ नया सीखा, और इतना बढ़िया सा एक्सपीरियंस रहा कि कॉन्फिडेंस एक अलग आ गया उसके बाद। लेवल 2 के बाद क्या क्या डिफरेंस लगा अभी लेवल 2 होने के बाद? लेवल 1 में तो हमने जो भी सीखा था ना, तो उसके बाद हमें इम्प्लीमेंटेशन वगैरह वाज गुड, बट लेवल 2 के बाद जो है हमें लाइक प्लांट को कैसे रिलेट करना है ना, वो फिर हमें जब सीखा तो उसके बाद फिर हमें ये रियलाइज हुआ कि लाइक जो पर्सन के बारे में हमने जो भी डिसाइड किया कि भाई हम उसको ये रेमेडी दे रहे हैं, तो हमें उसमें एक और कॉन्फिडेंस ऐड हो गया कि भाई हम ये दे रहे हैं बिकॉज हमने यही चीज ऑब्जर्व की थी उस प्लांट में भी, उस पर्टिकुलर फ्लावर के प्लांट में भी हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी, तो ये बहुत ही बढ़िया था। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी रेमेडीज खुद यूज कर रही हूँ, और घर में भी काफी लोगों को मैंने दिया हुआ है, और इस टाइम पे मुझे ये मिला नॉलेज जिस टाइम पे मुझे जरूरत थी। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ का ऑपरेशन था, तो उसको भी मैंने रेमेडीज दी, मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को। अभी मैं रिसेंटली परसों का एग्जांपल बताऊंगी, मेरे बेटे को बहुत स्टमक पेन हो रहा था, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि उसको एसिडिटी वगैरह, मुझे नहीं लग रहा था कि उसको एसिडिटी है, तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, बहुत सीवियर हो रहा था, इंजेक्शन देने के बाद भी खत्म नहीं हो रहा था। मैंने उसको रेस्क्यू रेमेडी दी और तुरंत ही उसको रिलीफ मिला, और एक्चुअल में उसको क्या हो रहा था वो मालूम पड़ गया। तो इमीडिएट इफेक्ट मैं जब भी देती हूँ ना, तो वो मेरा एक ऐसा है कि श्रद्धा बन जाती है। मैं बॉक्स खोलती हूँ और सोचती हूँ देती कुछ और हूँ, तो वो इंट्यूशन है या कुछ और है, लेकिन मुझे बेनिफिट बहुत ज्यादा हो रहा है। और लोगों से भी मैं बातचीत कर रही हूँ कि जो मेरे जान पहचान वाले हैं उसको भी एक सेवा के लिए शुरुआत में तो मुझे काफी सारे बेनिफिट्स खुद मिले हैं। मैं खुद के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो बहुत ही बढ़िया है। तो सब लोगों को मैं बोलती हूँ कि वेरी श्रद्धा के साथ एक करना चाहिए, कि ग्रेस ही है कि हम लोग इम्पोर्टेंट है। हम लोग दोनों पति पत्नी का भाव बड़ा सेवा भाव ही है। हम लोग तो ढूंढते रहते हैं कि कोई आदमी मददगार हो तो उसकी किसी तरह से मदद की जाए, एंड दिस इज द बेस्ट वे, आवर नेचुरल वे। और इसमें मतलब जो नेचुरल वे के से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और जैसे अनुपम भैया ने शेयर किया था कि जो एलोपैथ मेडिसिन का तो मैं भी बहुत एंटी हूँ, क्योंकि ये जो अपनी प्राकृतिक पद्धतियां हैं, चाहे ये बैक फ्लावर हो या होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, और जो सबसे बड़ी बात है कि अपना सेवा साधना करो और सुदर्शनी क्रिया करो और जस्ट फील ब्लेस्ड। आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड थैंक यू वेरी मच दिग्विजय भैया। आप माध्यम बने हो, ये तो गॉड का प्लान था, मेरे को देना था, और आप माध्यम बने हो तो बेस्ट माध्यम हो आप। एंड ये जो एग्जाम का पैटर्न मुझे बहुत पसंद आया। हम लोग फिर अपने स्टूडेंट लाइफ में चले गए और थोड़ी मतलब अपने को एडजस्ट तो करना पड़ा, लेकिन एग्जामिनेशन सिस्टम आप बिल्कुल इसी तरह स्टिक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे हम अपने आप को भी जान पाए, और वो डिफरेंट फेज में डिफरेंट फीलिंग भी होती रही, शुरू में, बीच में और आखिर में, एंड आफ्टर कंप्लीशन जब रात को मैं सोया हूँ तो दैट वाज द बेस्ट स्लीप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम मतलब इस तरह भी ब्लेस्ड है कि दिग्विजय भैया हमारे गुरु हैं, और वी हैव ऑल हेड्स ऑफ टू दिग्विजय भैया। द वे ही टॉट, वेरी सिंपल वे, वेरी कन्वीनियंट, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू टू स्पीक। ना गुरु का तो सबसे ज्यादा मेरे ऊपर हमें लगता है बहुत आशीर्वाद है। वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव हिम इन आवर लाइफ, कि हर बार वो कुछ ना कुछ हमको एक नया चीज दे रहे हैं, और इतनी बेहतर से बेहतर। और इस लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने जितना एम्पावर किया ना अलग अलग चीजें दे के, और आइसिंग ऑन द केक इज दिस जो बैच फ्लावर रेमेडी जो मिल रही है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल। और हमारा आई हैव गॉट अ वेरी ह्यूज फैमिली, तो मुझे सारे सब दिख रहे हैं कौन कौन से कहाँ फ्लावर्स हैं। तो अभी तो हमको जल्दी से हम एक्साइटेड हैं, आई एम वेटिंग वेरी एंशियसली कि हमको जल्दी से आप भेजो वो ईगरली और हम स्टार्ट करें। मुझे तो बस अब लगा है इम्पैटियन शायद मेरे में ज्यादा बढ़ने लगा है, जल्दी करने का हो रहा है ना, तो इस बात पे जोड़ सके, लोगों के साथ बने रह सके, तो इट्स रियली वेरी नाइस थिंग, आई गॉट इट। तो अभी तो इसमें और स्टडी चालू है, पर जो लोगों ने भी बस लेवल 1 किया है, लेवल 2 नहीं किया, तो उन लोगों के लिए मुझे स्पेशली कहना है कि तो रियली इन डेप्थ अगर आपको इसका नॉलेज लेना है, एक्सपीरियंस ठीक से करना है, तो आप लेवल 2 करें। और लेवल 2 करने के बाद भी अपने आप को रोके मत। अगर कोई ज्ञान लेके बैठे हो उसको बस सड़ने मत दो, ठीक है? उसको तुम जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, इससे कुछ नुकसान तो होने वाला तो है नहीं होगा तो कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है?
और मैं कहता हूँ कि इससे अगर 4 लोगों को इससे फायदा हो भी गया तो फिर उल्टा लोग आपके लिए सच में दुआएं देंगे या फिर आपके लिए फिर थैंकफुल रहेंगे और अच्छे जुड़ के रहेंगे। तो फिर इसमें अपना किंतु परंतु मत रखना, सच में काम करेगा क्या नहीं करेगा क्या, उन सब फेज से बाहर निकलो और बस लोगों को दो, एक अच्छे भाव से लोगों को देते रहो वो सेवा भाव में, और फिर डेफिनेटली इट वर्क्स लॉट, जो मेरा खुद का रियल एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं भी लेवल 1 के टाइम पे दिग्विजय जी को पर्सनली कॉल करके बहुत बार बोला है कि एक्चुअली ये रेमेडी लेना है ना क्या करना है, इसको फूल को सूंघना पड़ता है क्या इस तरह के सवाल मैंने पहले पूछा था। पर जैसे फिर मैंने लेवल 2 में इन सब चीज़ों को इन डेप्थ में समझा और लोगों को देना शुरू किया, सच में मुझे लग रहा है कि आगे चल के बहुत बहुत बढ़िया काम करेगा हम सबके लिए। Thank you very much for this opportunity. They speak to people, and when you do that, how it is actually? नहीं, हम तो पहले से ही लोगों के साथ रहते हैं ना, एज आर्ट ऑफ टीचर, फुल टाइम ट्रैवलिंग टीचर, तो हमें तो हर रोज ही लोगों से बात करना होता है। तो लोग कोई ना कोई खुद से कंप्लेंट बोलते ही है, नहीं भैया लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ तो हो क्या रहा है, तो फिर मैं कुछ नया चीज़ लिया है तो इसका मैं फिर लोगों को देता हूँ, तो वुड यू लाइक टू टेक। और जैसे फिर लोगों का ऑलरेडी फेथ है हम सब पे इतने सालों से, तो भैया कुछ भी बताते तो अपने लिए सही बताते, तो फिर लोग खुद से फिर बोलते हैं कि हाँ। और मैं यहाँ पे फाइनेंस वगैरह पहली बात बोलता नहीं ना, अभी तो हम लोगों ने बोला कि 50 लोगों तक आप ऐसे कुछ मत बोलो। तो जैसे ही मुझे लगता है कुछ एक ये अलग केस स्टडी लग रहा है मुझे, तो मैं उनको इंसिस्ट करता हूँ। और लोगों को जब लगता है कि हम उनके साथ थोड़ा ज़्यादा देर बात कर रहे हैं तो उनको भी अच्छा लगता है कि भैया मेरे में इंटरेस्ट ले रहे हैं या मेरे प्रॉब्लम को फिर गाइड कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं मुझे। एक तो लोगों को सुनने वाले मिलते नहीं है और जब हम लोग उनसे खुद से बोलते हैं कि भाई तेरा प्रॉब्लम बता, सुना तो फिर मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि लोग कहीं रजिस्ट करते हैं या ना बोलते हैं। तो यूजुअली हम लोग कोर्सेज के लिए लोगों से बात करते ही है, तो इसी में जब लगता है कि थोड़ा केस स्टडी अलग लग रहा है तो फिर वो फिर शुरू हो जाता है। और फिर लोगों को जैसे फिर हम लोग रेमेडी देते हैं तो फिर कुछ दिन के बाद वो सच में डेफिनेटली दे विल कम इन अ पॉजिटिव वे, और फिर वो बोलते हैं। उसके साथ मैं बोलता ही हूँ कि सुदर्शन क्रिया करना है, मेडिटेशन करना है, सहज समाधि करना है, तो वो सब चीज़ें खुद से करता है, फिर रिकनेक्ट होता है, तो नो डाउट तो पॉजिटिव रिजल्ट आना ही है। Then I joined level 1, मुझे बहुत अच्छा लगा, but still it was not in depth. But level 2 किया तो I found it so beautiful and so connected to life, and so it is so helpful for upliftment, your own upliftment. So ये जो कंटिन्यूस हमारी जर्नी है एवोल्यूशन की, उसमें तो ये बहुत हेल्पफुल है ही, और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मुझे मिले इतने दिनों में। मेरी मदर को दिया तो शी हैज बिकम मच मोर सेल्फ केयरिंग, और इमीडिएट रिजल्ट्स बहुत सारी मेडिसिन में मिले, पर मैंने ट्रीटमेंट किट ही लिया था। अब लेवल 2 के बाद मैंने सोचा स्टॉक किट लेना चाहिए मुझे, एंड आई रियली वांट टू वर्क इन दिस एंड हेल्प as many people. I'm so thankful to God, Gurudev, and you for imparting this knowledge, and it's really a precious gift. So I'm so thankful to everyone. I got to know myself better and the people around me, and अभी उनको भी हेल्प कर सकते हैं हम लोग रेमेडीज देके, एंड एक्सपीरियंस भी आए हैं मुझे रेमेडीज देके। जैसे मेरा बेटा स्ट्रेस सबसे गिर गया था कुछ दिन पहले, तो उसे मैंने रेस्क्यू दिया, तो ही वॉज नॉर्मल, एंड उसे कुछ रोया नहीं है, कुछ उसकी तकलीफ नहीं जो होती थी पहले। और मेरे चाचा है जिन्हें अनकॉन्शियस हो गया वो, तो मैंने अभी रात में आवाज़ दी, एंड ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग एंड टू ब्रीथ ऑल्सो, so my mother gave him rescue remedy. We were able to take him to the hospital, and it was not due to heart attack only. So now it's fine. Heart fail हो चुका है, but still for this knowledge. और सेशन करने के बाद I feel very empowered. I mean, I'm so aware of my emotions. जैसे पहले भी मैंने बोला था ना, we casually say कि किसी चीज के पीछे इमोशनल प्रॉब्लम है, एक फिजिकल प्रॉब्लम के पीछे, but now I know कि इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, there are 38 types of emotion. So there is one type of emotion which is behind physical problem in the body. So ये awareness के लिए I'm really thankful. अब इस knowledge के बाद, you know, I feel so I'm not judgmental towards people. I know there is a cause behind their behavioral pattern. So वो मेरा वो judgment बहुत कम हो गया है. I'm more compassionate towards people, more accommodating towards their behavior. तो क्योंकि मुझे लगता है अब मैं उनको heal कर सकता हूँ. You know, previously ऐसा लगता था कि how do I change somebody?
because they are stuck in their emotional pattern. Usse life is so miserable for them and we can't do anything about it. But now I feel so empowered. I feel I can actually change somebody's life. कि कुछ लोग इस स्टेज में होते हैं कि वो मेडिटेशन योगा क्रिया वो कर ही नहीं सकते. So I think we can heal them and then bring them to a spiritual path. तो आज जैसे भैया ने बोला ना, पंचल भैया ने, कि this is not a replacement or a substitute to your spiritual path, to kriya, to meditation, but this is definitely a first step where you towards spirituality. तो अब मेरे सराउंडिंग में आई मीन आई मेट लॉट ऑफ पीपल, कुछ लोग हैं जो मेंटली भी लाइक अल्जाइमर है किसी को, तो आई स्टडीड थ्रू देयर फैमिली मेंबर्स. शी इज नॉट इन स्टेट टू डिस्क्राइब हर मेंटल स्टेट. तो मुझे लगा कि आई कैन हील हर, तो आई फील वेरी एम्पावर्ड. मुझे लगता है दिस इज मोर फुलफिलमेंट फॉर माई सेल्फ एंड ऑल्सो दिस विल ब्रिंग मी ऑन अ डिफरेंट प्लेन इन स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो दूसरों के तरफ. And after like giving these remedies, like as Sharda Didi also told, we are a medium. After giving those remedies, when people tell that they are getting benefited, it brings such a great sense of contentment in us also, a lot of satisfaction. And even if when I talk to people, right, I always want them to open up, kind of, even if they don't want to take the remedies. So after learning from this course, I've come to know fear as different flavors, uncertainty as different flavors, right? Which people, general public doesn't know. So when I talk to people, I try to kind of open up them. And what happens at the end, then they tell that I feel so much relaxed after talking to you, just because they have been able to express themselves. They have been able to find the root cause of the problem. Whether they will take the remedies or not, that is the next question. But it is such amazing, and I am eagerly waiting to do level 2 also. Yes. मैंने अभी किया नहीं है, लेकिन मुझे पता है नेचुरल है तो उसका प्रभाव होगा ही होगा और बहुत इफेक्टिव होगा. Yes. लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी जो सुन रही हूँ यहाँ पे ना, आई कैन हील हिम, आई कैन हील हर. मुझे पता चला मैं परिवार वालों को हील कर सकता हूँ. इस सवारी पे मत सवार हो जाना. सी हीलिंग इज ए internal phenomenon and it can happen only through grace. तो ये याद रखना, गुरुजी है, गुरुजी का निमित्त बन के चलना. इसलिए दिग्विजय जी के साथ मतलब बात जो हो रही रखना, केवल healing happens only through grace और गुरुजी है हमारे साथ. Yes, बस मुझे और कुछ नहीं बोलना. एडवांस चल रहा है बगल में.